सतनाम श्री वाहिगुरु फाल्गुन अनंत अपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। फाल्गुन अनंत अपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। सेज सुहागी सर्व सुख दुखा नहीं जाए। मेरे सहिया मंगल गाही गोविंद अलाए सत सुहाई राम के कर कृपा दिया लाए। बसंत स्वर्ग लोक है जित ते तीर्थ भी न वखंडन। बसंत स्वर्ग लोक है जित ते तीर्थ भी न वखंडन है। विश्रांत हर गोपाल विश्रांत हर गोपाल नानक ते प्राणी उदिया परम है। गाल सखिए तुमका गीत
मेरा मोहन सत्य पूजा सतगुरु जोगो जग अटल पाठक चबर शकर जी के मालक दसा पातशाहियों की आत्मक जोत समुचे मनुखता के सांझे रहबर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी सर्वात्म गुरु साध संगत आप जीवन भागे हो जो कि काफी समय तो लैके पहला बीबियां के जथे पासों सुखमनी साहब जपजी साहब के पाठ आप जी ने सरवण किए, उस तो बाद कीर्तन होया जथे के सिंघां ने किया। हुण आप सारे रल मिल के जिन्ना समा सतगुरु कृपा करनगे विचार करांगे। बेनती है लंगर के विचों बहुत आवाज जी स्टेज ते आ रही है, कृपा करके जिन्ना समा दीवान चलता है उन्ना समा लंगर आ जिहड़ा वो भी समाप्ति कर दो, क्योंकि इत्थे पुरुषार्थ का लंगर जिहड़ा वरत रहा है दीवान की समाप्ति तो बाद संगत लंगर छकिया करो या दीवान तो पहला छक लिया करो। इस करके किसी प्रकार की आवाज जी है स्टेज पर ना आए, क्योंकि लाइव जो प्रोग्राम चलना पूरी दुनिया के अज चैनल वाले इंग्लैंड के चैनल चलता है, पूरी दुनिया चलता है खालसा टीवी। ये सज्जन अज बड़ी दूरों चल के मुक्तसर साहिब जिथे महाराज ने 40 मुक्तियों की टुट्टी गंढी 40 सिंघां की टुट्टी गंढ के मुक्तसर का खिताब दिता, उतों चल के आए ने टूटी गंढ नहार गोपाल, बड़ी दूरों चल के आए हैं। आओ आप रल मिल के विचार करिए। आपको अपने मोबाइल फोन कृपा करके बंद रखो। आप जेड़े बच्चे रौला पा रहे हैं कृपा करके इन्हां बच्चों रोकया जाए। जदों कोई रौला पाउंदा ये सारियां दी जिम्मेवारी हुंदी है। आप एक दूजे के मूँह वाल देखी जाने होने भी दूजा हटाऊगा, आप हटाओ, क्योंकि सत्संग दे विच रौला पाउणा बहुत बड़ा जिहड़ा पाप है। हर जस चल के जो बात चलावा गोबिंद सिंह वह सिख ना भावै वो गुरु का सिख नहीं, जिहड़ा हरि जस दे हुंदिआं रौला पाउंदा है। हर जस चलते जो बात चलावै इहां उहां ठौर ना पावै
ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਰਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਗੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੈ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੱਗਣ, ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਗਣ ਹੈ ਇਹ 12 ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਫਾਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ, ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਫੱਗਣ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਫਾਲਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਹੈ। ਫਾਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਫਾਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ, ਅਪਾਰ ਜਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੰਤਰ ਵਸਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ ਸਾਡੀ ਮੋਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਫਾਲਗੁਣ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਮ ਰੂਪ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਮ ਰੂਪ ਸੇਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮਤਾ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਫੱਗਣ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ। ਫਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਹੋਲਾ ਖੇਡਣਗੇ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ, ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
जुझारू कौम महाराज ने बनाई है, जिथे संत बनाया है उथे नाल सिपाही भी खालसे ने बनाया है। जदों अमृत छकाया जाता, 3 बाणियां 10 ग्रंथ चों ने, 2 आल गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों आ कई 10 ग्रंथ नूं गाल कढ़ी जाती। 10 ग्रंथ की बाणी जोश भरदी है। जे 10 ग्रंथ भी साडे कोले होवेगा तां खालसा काहदा है, वो तक आम जा बन जाएगा। संत सिपाही फिर सिपाही नहीं कहाउण दा हकदार जे 10वीं की बाणी नूं छड्डता। फाड़ फाड़ का अर्थ होंदा है बनस्पति का खिड़ जाना, फाड़ का अर्थ होंदा रंग। ये होली कित्थों चली? ये प्रहलाद भगत के समय, सतयुग के समय होली चली है। प्रहलाद भगत का पिता हरनाक्ष सीगा, उन्हें तपस्या करी पर तपस्या करके हंकारी हो गया, हंकार आ गया। वो कहता जले हरी, गुरु साहब का कहते नहीं कि जले हरी थले हरी, जड़ा फला च हरी है। उन्हें नारा ला दिता, कहता जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष, है की हरनाक्ष होसी हरनाक्ष, रब बन गया रब। जेड़े हुण भी रब नाल मत्था लाउंदे है ना, गुरु नाल मत्था, गुरु ते किंतु परंतु गुरु दे शरीक बनदे ने। गुरु ते परमेश्वर च कोई फर्क नहीं, ना तां पहला रहे ने गुरु नाल मत्था लाउण वाले, ना रहना बड़े आए गुरु की बाणी से किंतु परंतु करने वाले। आ थोड़े समय दी गल्लां, एक कनेडा च रहिंदा हुंदा काला अफगाना कहंदे सी, 10 ग्रंथ के खिलाफ बोलिया, ओनू पंथ चों छेक दिता। आ पिछे जे मर गया, वो मरे के भोग ते भी कोई जान नूं तैयार नहीं। फिर एक दर्शन सिंह हुंदा सी, अकाल तख्त दा जथेदार सारदा, ओनू पंथ चों छेक दिता, रुलदा फिरदा। जिहड़ा खालसा पंथ नाल, अकाल तख्त नाल, गुरु के सरोवरां की निंदिया करता है, सरोवरां की, हरमंदिर साहिब नूं आम इमारत दसना, ये बड़ा ही है। गुरु के निंदक, गुरु के शरीक जिहड़े बनते हैं, जिहड़े कहते हैं गुरु का आम मनुख है, वो गुरु आम नहीं, गुरु का परमेश्वर है। आम का अपना गुरु साडे वर्गा किते, कई गुरु नूं अपने वर्गे ही समझी बैठे भी साडे वर्गे ही शरीर है, नहीं। आप नारायण कलाकार जग में परवरे, बड़े आए गुरु के शरीक बनने वाले, ना तो रहे अज तक, ना किसी ने रहना। साध संगत संत बाबा आतर सिंह मासूमाने वाले महापुरख धारणा पढ़ते होंगे। आओ सारे आप भी पढ़िए, रल मिल के बोलिया करो, सारे पंडाला च आ जाओ। एवना धारणा है जेड़े गुरु नूं अपने वर्गा जानते हैं, आम जानते हैं, गुरु के शरीक बन गए। ओ किते रब बन के ना पाई बड़ी, सेवका ना देव रही, किते रब बन के ना हो बड़ी, सेवका ना देव रही।
ਕਰਕੇ कलगीधर जी ने देखो कलगीधर जी खुद रब आप सी निम्रता इन्नी कहते जो हमको परमेश्वर उचरा ते सो नरक कुंड में पाए रब आप कह रहे भी मैनू जेड़ा परमेश्वर कहूगा नरक के कुंड च पाओ पर जेड़ा कलगीधर नूं ये तां महाराज की निम्रता है पर जेड़ा कलगीधर नूं परमेश्वर कहूगा नरक च नहीं पैंदा हो ਇਹਦੇ दो अर्थ ने एक ਇਹਦਾ अर्थ है कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਬੜੇ ਆਏ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਲਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ना घुसुन मारता जदों मारता मत मारता आ जेड़े गुरु के शरीक बनते ने कदे 10 ग्रंथ की निंदिया करती कदे इतिहास से उंगल चकती इन्हां दी मत्ते मारी गई है भजन करना नहीं सिमरन करना नहीं वेलियां ने संगत दीयां रोटियां छकी जानियां गुरद्वारे दीयां रोटियां सियाणे कहंदे यार 3 काम करेन मत मारन हद गलन भजन करना देन ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ नहीं करते ना गुरु घर ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਡ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਜਾਣੋ ਪਏ साध संगत गुरबाणी तो कहती है आस को जो भला कहावा किसी भलाई देखत ना आवे कदे कह दिता ये खंड पाठां दी लड़ियां क्यों चलदियां ने ये दसो जो गुरुद्वारे च खंड पाठां दी लड़ी नहीं चलेगी होर गुरुद्वारे च डांस होया करनगे जेड़े पाठी सिंह पाठ करके अपना घर चलाउंदे है ज्यादा ये उन्होंने तनख्वाह दे दिया कर जेडे कहते हैं भी लड़ियां क्यों चल रही ने अखंड पाठां बाबा आतर सिंह महाराज ने पोतरियां चलाइया जिन्ना भजन हो चीमा साहिब जिथे बाबा आतर सिंह का जन्म स्थान है अखंड पाठ का उत्थे चलते ने असी सुनिया कहते मूल मंत्र की लड़ी नूं नहीं 40 साल हो गए चलती मूल मंत्र के पाठां की मूल मंत्र के जाप की आओ विचार से हरनाकश रब का शरीक बन गया घरे पुत्र पैदा होया घर हरनाकश दैंत
ਦੇ ਕਲਰ ਕਵਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ, ਜੇ ਖਿੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਲਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਘਰੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਆਏ ਤੰਗ ਕਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਭਜਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੇਟ ਤੇ ਆਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ, ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਰਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜਪਾ ਕਰ, ਜੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਫਲਾ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਹੈਪੀ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਹੋਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨਮਦੇ ਹੀ ਰਾਮ 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 ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੰਗ ਐਸਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ, ਜਿਸਕੇ ਬਰਤਾਦਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ।
सूरा आत्म जिन्हें सगल अवस्था पे जाकर सतगुर पूरा जिन्हों नाम का रंग चढ़ के सूरमा सत्संग प्रहलाद कहने लग्या ये तो मेरे पिता का नाम है हरनाक्ष मैं तो जड़े हरी थले हरी कहांगा कहने लगे नहीं रब का नाम लैन ते पाबंदी है सजा मिलती है तेरे पिता के राज क्योंकि तेरा पिता ही रब है रब बन गए प्रहलाद भगत कहता मैं सत्कार करता मेरा पिता है पर मेरा पिता रब नहीं वो तो राजा है रब मेरे पिता वर्गे तो राजे पता नहीं इतने किन्ने को पैदा करे किन्ने को खत्म हो गए 10वें पातशाह बाणी च लिखते ने कहते जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी शत्र ही की साया कई कोसलो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े भूपन के दर्प को दरत है मान से महीप और दलीप कैसे शत्रधारी दलीप वर्गे राजे मान धाता वर्गे राजे पता नहीं किन्ने काले किन्ने के तुर गए तो आय प्रसाद सवैया च लिखते ने जीत फिरे सब देश इंसान को बाज ढोल मरकांगन गारे गुंजत गूट बिजाड़ के सुनकर हिंसत किया राज हजारा देशा जितते आए लेकिन अखीर नूं काल दियां दाढ़ थल्ले आ गए दशमेश पिता ने लिखे बड़े आए बड़े गए कहते नहीं तेरा पिता ही रब है कहता नहीं परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है जी खंड ब्रह्मांडा लई खड़ी है मेरा पिता रब नहीं मेरा पिता तो एक साजिया राज है जो ना मनिया शिकायत कर दी टीचर ने आके हरनाक्ष को कहते राजन होर तेरी गल किने मननी है होर तेनू किने मनना है रब तेरा तो पुत्र है तेनू रब मनने वास्ते तैयार है तेरे तो घर ही बगावत होगी बाहर कौन मनूगा लोगों को पता लग गया वीर का पुत्र ही नहीं मनता धक्के मनाउंदा सी सत्संग धर्म जेड़ा धर्म दे विच वाधा प्यार नाल तां कीता जा सकदा आपां जबरदस्ती नहीं किसी नूं धार्मिक बना सकते जे आप कहिए जबरदस्ती अमृत छका देंगे नहीं जे छक भी लूंगा तो मैं रखनी नहीं रह धर्म हमेशा प्यार नाल वधदा है औरंगजेब ने देखो तलवार के जोर नाल धर्म वधाउणा चाहया वधिया नहीं की हाल होया औरंगजेब दा अखीर दे समय धर्म हमेशा प्यार नाल संदा मरता जाए पुकारा प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकड़े बगाड़ा टीचर जाके शिकायत करते ने हरनाक्ष कोले कहते हरनाक्ष राजन तेरे पुत्र की शिकायत लेके आए हैं नाले तो आप जपदा है राम राम नाले नाल दे बच्चे राम राम कहन लाते वो भी बिगाड़ते नाल दे बच्चे भी बिगाड़ते तेरे पुत्र ने तां ओ आप बिगड़े बगाड़ दत्ते नाल दे राजा तेरे नाल दे बिगड़े बगाड़ दत्ते नाल दे राजा तेरे नाल
सब जाते बुला रहे। हरनाक्ष ने फिर बुला के पूछना किया, हे पुत्र मैं की सुन रहा, तेरे टीचर तेरी शिकायत लैके आए नहीं भी तू मेरा नाम नहीं जपदा, तेनू पता मैं रब हाँ? कहन लग्या पिता मैं एक पिता के नाते तेरा सत्कार करदा, तू मेरा पिता है पर तू रब नहीं। पता नहीं तेरे वर्गे किन्ने राजे आए ते किन्ने तुर गए, परमात्मा का नाश तो रहता है, वह तो कदे नाश होंदा ही नहीं। तेरे वर्गे पता नहीं उन्हें किन्ने क राजे घड़े ते किन्ने क मेल करते। कहने लगा जो तू ही मैनू मनेगा होर कौन मन। इत्थे फिर सच ते झूठ की लड़ाई शुरू हो गई, मैं ते तू की लड़ाई शुरू हो गई। हरनाक्ष कहता मैं रब हां, प्रहलाद कहता तू रब नहीं, प्रहलाद तू ही करता, हरनाक्ष मैं करता, मैं तू की लड़ाई। फिर कहता देखना तेरा रब तेरी राखी किवें करता। फिर हरनाक्ष ने कोई कसर नहीं छड्डी, प्रहलाद कह दिता जलादा नूं जाओ इनू पहाड़ तो पत्थर बन के दरिया सुट दे। उच्ची जगह तो सुटिया, ऐ फुल की भी नहीं लगन दिती परमेश्वर ने, दरख्तां च फस गया, पत्थर बन के डोबना चाहया, पानी ने डोबिया नहीं। बड़ा कुछ किया, प्रकृति का सुभाव बदलता परमेश्वर ने। गिरदार गिर नाम पहाड़ का, गिरदार जल ज्वाला पहरा प्यो राजा राम माया फेरी। राजा राम वाहिगुरु ने माया प्रकृति का कुदरत होना। देखो जल डोबदा है ना, जल देवते को हुक्म करता है डोबना नहीं, सुभाव बदल दिंदा वाहिगुरु अपने प्यारिਆਂ ਲਈ सुभाव बदल दिंदा। ਜਦੋਂ फिर ना कोई चारा चलता देखिया, हरनाक्ष की भैन शिव जी की भगतनी सी होलका, जिथों होली चली है ਉਹਨੇ शिव जी तो एक चादर ली हुई सी, वर प्राप्त किया चादर। वो जो चादर लैके उपर लैना दी अग नहीं सी सार सकती। कहन लगी भरा ये तेरा पुत्र बागी हो गया, कोई गल नहीं, जे हुण तक ये खत्म नहीं होया मेरा भतीजा नूं मैं अग च लैके बहनी आ, मैं अपने उपर लोई लै लवांगी, ये मच जू, मैनू तो मारा शिव जी भगवान का। प्रहलाद की भूआ होलका अग च लैके बैठ गई प्रहलाद नूं। देखो कुदरत, ऐसा जबरदस्त हवा का झोंका आया, बुला आया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ लोई लैके प्रहलाद ते पै गई, होलका मच गई, प्रहलाद बच गई। साध संगत फिर ये होली कित्थों चली, ये सतयुग के समय चली। फिर जदों प्रहलाद का राज आया, प्रहलाद ने राज भी किया धरती, जदों राज आया प्रहलाद का, फिर जेडे प्रहलाद के श्रद्धालु सीगे उन्होंने ये याद बनानी शुरू की भी जेडे दिन भूआ भगत जी नूं अग च लैके बैठी सी, वो दिन वो चेखा बना लिया करते, अग लाया करते, वो चेखा लकड़ा मच जांदियां, एक दूजे के सुआह पाया करते सी। सतयुग दे विच एक दूजे के सुआह पा के होली खेडते सी। फिर त्रेते युग दे विच भगवान राम ने इहदा रूप बदलता, कहंदे सुआह पाउणी ठीक नहीं, माड़ा मन्निया जांदा, रंग लागे पाउण सुक्का। फिर द्वापर युग दे विच रंग नूं पानी च घोल के लागे पाउण पिचकारियां। भगवान कृष्ण का समा आया जदों, हुण कलयुग दे विच भी इसे तरह रंग नूं पानी च घोल के कई सुक्का भी पा दिंदे आ, पर सुआह नहीं पाउंदा। ये सुआह पा के खेडदे सी सतयुग दे समय। प्रहलाद की भूआ होलका तो होली चली साध संगत। फिर उस तो बाद हुण जदों सारे चारे देख ले, कोई चारा ना चलिया, एक अग का थंम
गर्म कर लिया, लाल हो गया। जदों हरनाक्ष कहता कि प्रहलाद तू कहना है कि मेरा परमात्मा हर जगह है, तू कहना है ना? प्रहलाद कहता हाँ मेरा राम हर जगह है, चप्पे चप्पे च है। कहता फिर तप्ते थानू जफ्फी पा है कि तेरा राम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी है? साध संगत प्रहलाद कहता हाँ मेरा राम तप्ते थान च भी है। ते फिर उत्थे कहते प्रहलाद नूं कीड़ी फिरदी नजर आई सी थन ते, भगवान नूं कीड़ी बनना पई अपने भगत की शरता विश्वास कायम रखने वास्ते। कई तो करामातां नूं झूठियां मनदे ने कि करामात हुंदी है नहीं, करामात तो अज भी वापरदी है। जिहड़ा बाणी पढ़दा गुरु नानक देव महाराज ने पंजा नाल रोकिया नहीं, बड़ी कधारी के पत्थर नूं, वो पंजा छपिया पिया है पाकिस्तान च गुरुद्वारा पंजा साहब है। अंग्रेजा ने जोर ला लिया धड़ धड़ के, वो पंजा साध संगत घड़िया नहीं। ये करामात नहीं। और नास्तिक जे मिशनरी जे बड़े चल पे प्रचारक हर गल ते किंतु परंतु कहते करामात होंदी हो क्यों? आप बाणी पढ़नी नहीं, होर नूं पढ़न देनी। साध संगत गुरुआं ने अपनी बड़ियाई कराउण वास्ते किते करामात नहीं दिखाई। करामात तो बिना मनदा भी कोई नहीं। जे बड़ी कधारी नूं इन्नी क करामात ना दिखाउंदे, बड़ी कधारी दा हंकार नहीं सी टुटना जे पंजा ला के उहदा पत्थर ना रोकदे महाराज। करामात तो बिना मनदा भी कोई नहीं। साध संगत सो अकाल पुरख की बड़ियाई को प्रकट करने वास्ते जगह जगह गुरु साहबाना ने करामात दिखाई है। मक्का फेरिया, भगत नामदेव के समय दिवड़े का मुंह फेरिया। कई कहते हैं मक्का नहीं फेरिया, मन फेरिया। मन भी फेरिया ते मक्का भी फेरिया। आ कई शंका करते हैं कि गुरु नानक ने दरख्तों तो मठियाइयां किवें झाड़तीयां? वो जेड़ा गुरु नानक एडे बड़े आकाश नूं बिना आसरे तो लई खड़ा है, धरती खड़ी है, खंड ब्रह्मंडां नूं लई खड़ा, उहदे लई मठियाइयां झाड़नियां की औखियां? गल मठियाइयां झाड़नी नहीं, गल तां वचन मनण दी है। बाबे श्री चंद नूं गुरु नानक कहंदे संगत आईया दरख्त ते चढ़ के हिला दे मठाई झड़ू। बाबा श्री चंद जी ने तर्क कीती, लक्ष्मी दास ने तर्क कीती, कहंदे पिता जी तुसी बुजुर्ग हो गए हो, तुहाडा दिमाग नहीं काम करदा कि दरख्तां नूं भी मठियाइयां लगीਆਂ। फिर भाई लहरा जी नूं कहा गल वचन मनण दी सी। ओहदा जदों जाके दरख्त हलाया तो मठियाई झड़ी। साध संगत अज जगह जगह पे किंतु परंतु वाले चल पे। हुण 5 तीर दत्ते बंदा सिंह बहादुर नूं भी सरहंद फतेह करेगा 5 तीरां नाल। गल 5 तीरां दी नहीं, गल वचन मनण दी है। फिर 5 तीरां नाल सरहंद फतेह कीती ना, हुण इहते भी शंका करनगे। हर गल ते शंका। आ थोड़े दिन पहला एक विवाद चलिया, बाद तो उस बंदे ने माफी मंग ली। चलो भुलिया ना जानो, जे शाम नूं घरे आ जे सवेर दा भुले। आही भाई जसवीर सिंह KTV वाले जिहड़े अज आए ने गड्डी च बैठे आ सज्जन, उन्होंने किसी भाई बंदे नूं कहा भी बाबा बंदा सिंह की एडी कुरबानी, उन्होंने बच्चे का कालजा कढ़ के मूँह च दिता। कहता जी तुसीं देखिया, देखो देखिया तो अपना जन्म भी नहीं हुंदा देखिया, देखिया तो आप गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी। जो गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, आप कहना कोले पर आप मन रहे हैं, विश्वास है। विश्वास भी कोई चीज होंदा है। बाद को ने माफी मंगी, हुण पर्दा लगे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि दुनिया अपने पर्दे च ही बसदी है, पर्दे तो बाहर भी लोग बैठे हैं। इस करके आओ
हुण देखिया तो आपां अपना जन्म भी नहीं, विश्वास है पिता का जन्म तो जाने भूत। आओ विचार के विश्वास, विश्वास की जित होंदी है भरोसे की। प्रहलाद नूं विश्वास, भज के तत्ते थम नूं जफा पा लिया। जदों तत्ते थम नूं जफा पाया, हुण हरनाक्ष हंकारी एडा हंकार विच इन्ना क्रोध च आ गया, कहता इस तरह नहीं तू मरदा। कृपान कढ ली, मार वास्ते अगे बढ़िया, कहते थम फट गया, विचों नरसिंह पैदा हो गया। नर सिंह, सिंह शेर का मूंह ते धड़ जिहड़ी है बंदे की है, क्योंकि हरनाक्ष ने बर लिया होया सी भी मैं ना बंदे तो मरा ना जानवर, हम अद्धा जानवर है ते अद्धा बंदा। शर्तां भी तो पूरियां करनियां सी ना होईयां। जदों ये गुरबाणी च लिखिया है, कहंदे प्रभ थम ते निकसा कै विस्तार, हरनाक्ष छेदियो नक बदार। कहंदे नौहां ना पालिया हरनाक्ष, क्योंकि हरनाक्ष ने यह भी कर लिया सी भी किसी शास्त्र तो ना मरा, फिर बड़े नौ सी ओहदे नौहां ना पालिया, क्योंकि नौ किसी शास्त्र च नहीं होंदी। कई कहते हैं दुष्ट दमन, दुष्ट दमन कितों पैदा हो गए? दुष्ट दमन दे माता पिता का नाम दसो। हेमकुंट है ही नहीं, कहते हेमकुंट ते असीं पुछदे हां भी तुसीं नरसिंह दे माता पिता का नाम दसो, मुक्कड़ तुसीं सकदे नहीं, क्योंकि बाणी च लिखिया भी नरसिंह आया। जे प्रहलाद की रखिया लई नरसिंह पैदा हो सकता है, देवतियां की रखिया वास्ते, दैंतां दा नाश करने वास्ते, समुद्र ऋषि दे बुलाउण ते दुष्ट दमन क्यों नहीं प्रगट हो सकता? परमात्मा प्रगट भी है। आ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप दे विच प्रगट है। गुरु ग्रंथ साहिब की है? कई कहते हैं रब है ही नहीं, आ गुरु ग्रंथ साहिब की है? रब है। देखण वाली तेरी अख नहीं, रब देखों वख नहीं। साध संगत ये परमात्मा की है, गुरु ग्रंथ साहिब की है। बाहो बाहो बाणी निरंकार है, इस जेवड़ आवरना कोई। फिर हरनाक्ष भज के अंदर वड़न लग्या। शाम का समय तकान का, अजे सूरज छिपया ना, दिन ना रात। जो भज के अंदर वड़न लग्या, देहड़ियां च जाके चक लिया गोडियां ते। हरनाक्ष दीयां पहलां तां शर्तां पूरीआं कीतीआं भगवान ने। कहंदे लै भाई हरनाक्ष, तैं कहा सी ना मैं धरती ते मरा ना आकाश ते, हुण ना तू धरती ते है ना आकाश ते, तू मेरी गोद च अद्धा थल्ले है। पहली शर्त पूरी। दूजा तू कहा सी ना दिने मरा ना रात नूं, हुण दिन छिप रहा है ना दिन ना रात, दूजी शर्त पूरी। तीजी गल तैं कही सी ना अग तो मरा ना पानी तो, ना अग ना पानी। चौथी तेरी शर्त सी ना जानवर तो मरा ना बंदे तो, ना मैं जानवर ना बंदा, सिर मेरा शेर का ते धड़ बंदे दी है। ये भी शर्त पूरी। फिर क्या कहा सी मैं किसी शास्त्र तो ना मरा, मैं तेनू शास्त्र नाल नहीं मारना, आ नौहां ना मारांगा, नौहां। बस सारियां शर्तां पूरियां करके उस हरनाक्ष दा नौहां दे नाल साध संगत जी पेट चार कर दिता नरसिंह ने। ओ नौहां नाल पारता संतां दा,
किसै कै विस्तार हरनाक्ष छेदियो नक बदार नावां नाल पार दिता साध संगत जी नावां नाल सारियां शर्तां पूरीआं कर। ये होली चली उत्थों पूर्णमाशी जिहड़ी आउंदी है फग्गण दी उदों होली हुंदी है, पर साडे गुरु ने होला महला प्रचलित कीता आनंदपुर जंगी जौहर दिखाने शास्त्र रखने शास्त्र विद्या च निपुणता हासिल करनी ये गुरु नानक दे घर का असूल है। बिना शास्त्र केस नरम भेड़ जानो पाकता है कान हूं किते रह सधानो। बिना शास्त्र तो ते बिना केसा तो सिखा तू भेड़ वर्गा मेरे को ना आई। साडा गुरु कहता मैं तेन दर्शन नहीं देने फिर जावांगे कित्थे। इस करके शास्त्र रखने जरूरी है, शास्त्र भी पढ़ना शास्त्र भी। इस करके आस्त्र पान खंडो खड़ग तो तब अरतीर आप पंज कतार पवाउंदे है ना, पंज कतार ये पंजे कक्कियां दे विचों कृपान भी तो शास्त्र है। महाराज ने क्यों पवाई? जुल्म दे नाश वास्ते। गुरु गोबिंद सिंह कहते ने असर संघार देखो दुर्जन के मार देखो खालसा बनाए राक्षस बिरती वाले खत्म करने वास्ते दुर्जन खोटी मत वाले का नाश करने वास्ते मैं खालसा बनाया। संतां की रखिया वास्ते कई कहते संत शब्द तो कहते 1920 तो बाद चले 856 में पढ़ लो की कहा महाराज ने संत प्रहलाद की पैर दिन राखी। जगह जगह गुरबाणी में संत शब्द आता है। प्रहलाद नाल भी संत लाया महाराज ने। तुसी कही जाते 1920 चले है निशाना लाते ने निंदिया करते हैं क्योंकि 1920 के नेड़े तेड़े ये जेडे महापुरख हुए ने मस्तुआने वाले राणे वाले बाबा गुरबचन सिंह भिंडरां वाले ये महापुरख उन्हां समयां दे विच होए ने ये उन्हां दी निंदिया करते हैं। आ मिशनरी ये मिशनरी धुंदे वर्गे एक पंथप्रीत वर्गे 9 पंथप्रीत ते सारा दिन पंथ की निंदिया तो बिना कोई काम नहीं। इथों तक कहता है अके हेमकुंट है ही नहीं दुष्टदान के पिता का माता का नाम दसो। असीं पुछदे हां तूं नरसिंह के माता पिता का नाम दस असीं दुष्टदान के माता पिता का नाम दसदा। पुठियां गल्लां जदों जुत्तियां पैंदियां छत्र पैंदे है फिर कहते ने सानू कुट्टिया क्यों साडी पग लाती। जो तुसीं गुरु की पग नूं हत्थ पाउणे ते तुहाडी पग किवें बची रह सकदी। साध संगत जी जिवें एक जैकट हुंदी है बहुत प्रूफ जिचों गोली नहीं लंघदी। ये बंदियां ने कई बार बाहरले देशां में जुत्तियां पईयां ने जिवें जैकट बहुत प्रूफ हुंदी है बेइज्जती प्रूफ नहीं। बंदे ने जो एक बार छत्तर पैरों में समझ जाता है इन्होंने बार बार जिवें पशु रस्से चपण की बात होंगी है इन्होंने जुत्तियां खाण का सुभाव पै गया। जेड़ा पंथ नाल अड़ूगा वो चढ़ूगा। सतगुरु कृपा करन आओ बड़े आए रहे जे सर संगत निंदक लड़ियां ना चलाओ। आ पाठियां नूं तुसीं तनख्वाह दे दिया करो जिन्होंने अपने बच्चे खंड पाठां सिर ते पालने तुसीं तां दीवानां दा कथा दा 50-50 हज़ार ले एक दिन का। ये बच्चे कित्थों पढ़न जिन्हां दी रोजी रोटी है नाले पुन्न नाले फलियां नाले बाणी पढ़ते हैं नाले 4 पैसिਆਂ ਦਾ घर चलदा ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ। आओ साध संगत बचो आएंगे निंदकां तो। सतगुरु कृपा करन फल को आनंद अपार हर सज्जन प्रगटे आए। जिन्हां जीव इस्त्रियां दे अंतशकार रूप सेजा के जिन्हां ने पति परमेश्वर नूं प्रगट कर लिया है उन्होंने महान आनंद की प्राप्ति हुई है सदीवी आनंद की प्राप्ति हुई है। हर सज्जन प्रगटे आए संग सहारी राम के कर कृपा दिया मिलाए। सेल सहारी सर्व सुख दुखा न जाए। इस
सोनी बड़भागणी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावी गीत गोविंद अलाई। हे सखियो खुशी के गीत गाओ, संत रूप सखियां नाल मिल के खुशी के गीत गाओ, क्योंकि नाश तो रहत परमेश्वर की प्राप्ति होगी। सतगुरु कृपा करना। तुसीं फगण का सुनिया भी होली कित्थों चली, की इतिहास है। सतयुग के समय चलिया, महाराज ने कलयुग में फिर होली नूं सिखां लई होला महला बना दिता। अमृत छको। साडे कोले 20 बंदियां दे नाम आ गए, 15 तक घुड़की नगर तो हो गए, एक तो सारा ही परिवार हो गया। साडे नाल जथे च जांदा भाई गुरजीत सिंह, उन्हां दा सारा परिवार, बच्चे बैठे आ जो कहंदे सारे अमृत छकांगे। 5 को बाहरों 20 शरीरां की लिस्ट आ गई। दंदमी टकसाल के सिंह आउणगे, महता चौंक वाले साडे सिंह आउंदे आ, अमृत छकाउंदे ने। अगले महीने अमृत छकाया जाऊगा। अज जे किसी का मन मने, जिंदगी का भरोसा नहीं, साडे कोले नाम लिखवा जिओ। आउंदी मस्या 24 मार्च की है। आउंदी मस्या तो 2-3 दिन बाद आपां अमृत छकावांगे। टकसाल वाले सिंह इत्थे आउंदे ने, अमृत छकाउंदे आ। जिन्हां दा मन मने नाम लिखा के जाओ। बाकी 27-28 फरवरी के दौरान 1 तो 4 पिंड बौड़ा कलां आ गए नेड़े। इत्थे नेड़े बौड़ा कलां दौरान 1 तो 4 दिन दे। उस तो बाद 1, 2, 3 मार्च के दौरान आ गए महेरने पिंड मलेरकोटले तो पर। फिर 6, 7, 8 मार्च के दौरान ने घटौंदे जिला फतेहगढ़ साहब दे विच। इस तरह 24 मार्च की मस्या का दिन है। 24 मार्च अगली मस्या 24 मार्च की है। बढ़ चढ़ के आया करो मस्या ते। नेड़े इलाके वाले आप आया करो, होरनां नूं प्रेर के लैके आया करो। कलयुग का समय, कलयुग जोर मारदा है अपना। जिद्दे मस्या हुंदी है कईयां नूं डिक्का हो जांदा। अरदास करा करो डिक्का ना लगे। मारो आउंदा कोई फायदा नहीं। मस्या के आके कीर्तन सुनना जरूरी है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना। कीर्तन सुन के हुण देखो 1 घंटा हो गया, कल्ले बंदे तो भर्ती नहीं हुंदी, हुण इत्थे सारिਆਂ की अपनी भर्ती होगी। 1 महीने बाद 1 घंटा हो कीर्तन भर्ती च मन लाया। 1 महीने च 1 घंटा तो कढ लिया करो। नगर दे विचों माइयां बीबियां घरे भी तो तुसीं पैंदी हो, इत्थे आके लाहा लो। ये घरें गंगा आई है, ਇਹਦਾ लाहा लो। 19 साल हो गए। कल 22 तरीक नूं 21 साल हो गए सन घरों अरदास करके तुरिया नूं। 22 फरवरी 1999 नूं चले सी। 21 साल हो गए। 12वां लग गया दीवान लग्या। कल 22 फरवरी 1999 21 साल हो गए सेवा करके। जिवें हुण महाराज ने किरपा की अगे भी रखना। आओ हुण समा क्या नहीं दिंदा। KTV फेसबुक यूट्यूब ते KTV भर के कढ लियो। कल नूं दीवान सारा चलूगा। इन्हां सज्जणां दा धन्नवाद। KTV आ जांदा प्यार करदे आ, बड़ी दूरों आए। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਹਿਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਵੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਇਓ कोई अद्धा थैला सीमेंट का, कोई 1 थैला सीमेंट के योगदान अज पा के जाओ, कोई रह ना जाए। इत्थे लंगर भी चलता है, क्योंकि एक प्रेमी आया पटियाले तो, उन्होंने अज परिवार आया, अमरीका वाले सज्जन बैठे, वो कहते भी जोड़ियां की सेवा मैं करनी। मैं तुहाडा गुरुद्वारा तुहाडी इच्छा है। वो जोड़ियां की कहते 5 गेट ते खिड़कियां। खिड़कियां तो आ गई, 5 गेट भी आ जाएंगे। कलिया नहीं सेवा लै ली जोड़ियां की। सो इस करके कोई
जिन्नी क किसी की शरधा है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਸਬੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਪ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੀਮੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਉਹ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਪੋ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਪਾਠੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਟਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਹੋਊਗਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੀਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਉਹ ਲੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਕੇ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਤਾਂ ਜਾਪ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਲੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲੋ, ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਾਤਰ ਭੁੱਜ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪਾਠ 6 ਪੌੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਉਣੀ ਮੱਸਿਆ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। Bye.